ملتی ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے جہاں ان کو قید کیا گیا تھا اس کا بھی ہمیں کچھ ذکر ملتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج یا جو قوم ہے یہ اس کو چاٹ رہی ہے، لیکن روز یہ دیوار گرنے کے قریب ہوتی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، لہٰذا وہ دیوار واپس بنا دی جاتی ہے۔ کچھ جگہوں پہ ملتا ہے کہ اس دیوار کو واپس حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام دوبارہ بناتے ہیں۔ قیامت کے قریب کہا جاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ انہیں کہنا یاد آ جائے گا کہ یہ دیوار ہم انشاءاللہ گرا دیں گے، لہٰذا وہ دیوار گر جائے گی۔ جب یہ آزاد ہوں گے تو دجلہ اور فرات کا پورا پانی پی جائیں گے۔ یہ مختلف باتیں ہیں جو ہمیں سامنے آتی ہیں۔ ناظرین، بائبل میں بھی ہمیں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے، اور انگلش میں یاجوج اور ماجوج کو گوگ اینڈ میگوگ کہا جاتا ہے۔ تو بائبل میں ہمارے پاس ذکر ہے، بک آف جینیسس میں 10-2 میں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں بک آف ایزیکیل میں گوگ اینڈ میگوگ کا ذکر ملتا ہے۔ پوری ان کی تلمود کی اور بائبل کی آیات ہیں جو موجود ہیں، وقت کی کمی کے باعث ہم انہیں کوٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں مختلف مذاہب میں بھی یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ اور یہودیوں کے ہاں خاص طور پہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ جوڈائزم کے یعنی یہودیت کے حوالے سے گوگ ایک ایسے بادشاہ کا نام ہے جو میگوگ کی قوم کا بادشاہ ہے، اور میگوگ کو ریلیٹ کرتے ہیں یہودی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے۔ اور ایک ریسرچ میں جو کہ یہودیوں کی کتاب تلمود میں ہمیں ملتی ہے، اس پہ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ شاید جو میگوگ کی جو سرزمین ہے وہ حیرت انگیز طور پہ مشرقی ایران اور پاکستان کے بلوچستان کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ تو دس از اے ریسرچ، ہمیں نہیں پتہ حق الیقین کہ اصل بات کیا ہے۔ اور ایک ویڈیو آپ کو دکھائیں گے گوگ اور میگوگ کے حوالے سے، جو کہ ظاہر ہے ایک سینما اسکوپ ایک مووی کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے جو ہمیں دستیاب ہوئی۔ اس میں ایک پرٹیکولر امیج دیا گیا ہے گوگ اینڈ میگوگ کا، وہ آپ دیکھیے، پہلے کلپ دیکھیے، پھر ہم اس حوالے سے کچھ فردر ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ یہ کلپ ہے آپ کے سامنے۔ Because he says, okay, I don't need your money, but my Lord has given to me is more valuable. This is in all the books of Tafsir. The Khalifa, he sent an expedition sometime around the year 50 Hijri. Where was it located? In a pass between the Caucasus Mountains. Who are they? The Khazar tribes, Khazar. And they are the people who converted and became Jews. One, a white people, European people. These
able to block the Muslim army. नाज़रीन क्लिप आपने देखी, जिस कौम का इसमें तस्करा हमें मिला इसको खज़र कहा जाता है और खज़ेरिया एक पूरा रीजन था। ये आप मैप अपने सामने देख रहे हैं और यहाँ पे जो कौम थी वो खज़र्स कहलाते हैं और इस बात के भी शवाहिद हमें हिस्टोरियंस के ज़रिए मिलते हैं कि गालिबन ये गोग और मैगोग की जो कौम है ये खज़र्स थे। तो ये तो कुछ डेटा था इस हवाले से। अब कुछ सवालात हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। फातब, सिंबॉलिक है कुछ, आपको क्या लगता है? ये आप स्टूडेंट भी हैं, फिलॉसफी के रिसर्चर हैं, कोई फ़लसफ़ा कोई गाइडलाइन देता है इस तरफ हमें? असल में हर कौम, हर मजहब के, ये कम से कम अब्राहमिक रिलीजन्स में तो ये कॉन्सेप्ट है तीनों में, अभी जैसे आपने बड़े तफसील में बता दिया। मज़े की बात ये कि सब ने दूसरे जो अपने दुश्मन थे उन, और अपने ये भी नहीं कि जो हिस्टोरिकल दुश्मन थे, जो करंटली दुश्मन है उनके ऊपर डाल दिया। अब जूस कहते हैं कि जी ये सऊदी अरेबिया के सदर्न रीजन से भी है और इस माउंटेन रीजन से हॉग और मकॉग आएंगे जी, ये मॉग और मकॉग। अच्छा जी, और आपने बताया कि जी ये ईरान और जो बलूचिस्तान वाला रीजन है यहाँ से आएंगे। क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये पैलेस्टीनियन रीजन से निकलेंगे। हम लोग कहते हैं कि जी ये एक रशिया है और एक अमेरिका है। मतलब जिस बंदे को जिस तरह से नजर आता है, अब ये सही या गलत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। True. लेकिन ओवर टाइम जो जिसको जहां सबसे ज्यादा करप्शन नजर आई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने उसको गॉग और मगॉग बना दिया। से रिलेट कर दिया। लेकिन मान सब रहे हैं, इसका मतलब मानते सब हैं। ठीक। और सब यही मानते कि डे ऑफ जजमेंट से क़यामत के दिन में ही ये सब होगा। ठीक। लेकिन सबने उससे पहले इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। आजाद कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा, वैसे हिस्टोरिकली तो गॉग और मगॉग जो है वो कुछ लोग कहते हैं कि जी जॉर्जिया से निकले हैं, रशिया से। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ ये सिथियंस थे कि जो बाद में ईरान में सेटल होकर फिर पूरी दुनिया में फैल गए। कुछ कहते हैं कि कहाँ से निकले, उसके बाद में यूरोप की तरफ सारे चले गए। एरियन नेशंस को कहा जाता है। इन एसेंस ये काले कहते हैं कि गोरे थे, गोरे कहते हैं काले हैं, ये होता है। कैप्टन शफीक कादरी साहब, सर मेरा सवाल वही है, मैं आप सबसे, सिंबॉलिक है क्या? क्योंकि पहले तो ये हम स्टैब्लिश तो शायद ना कर सकें, लेकिन हमें पता चल जाए कि हम बात क्या कर रहे हैं। सिंबॉलिज्म पे बात हो रही है या दर हकीकत कौमें या बीमारियां, क्या है? बिल्कुल सही। इसमें थोड़ी सी बात मैं इसमें तो आगे जाऊंगा जो डॉक्टर साहब ने बताया थे उस हिसाब से कि याजूज और माजूज का कोई हमने डिफाइन नहीं किया कि है क्या। जी। या इंसान की शक्ल में है, जानवर है, या जानदार है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे उस कौम को जो वहाँ रहती थी उसको नुकसान पहुँच रहा है। जहाँ पर हज़रत ज़ुल्करनैन ने दीवार बनाई हो सकता है किसी चीज़ की शॉर्टफॉल हो, ठीक, कोई चीज़, या कोई जरासीम हो, या मिनरल्स की शॉर्टफॉल हो, जिसकी वजह से तो उन्होंने कहा हमें निजात दिलाया इससे। ठीक। तो उन्होंने वहाँ पे लोहा डाला उसमें और तांबा डाला। बात हो चुकी। ठीक है। लोहा और तांबा डालने से ये होता है कि ज़मीन में क्रॉप है उसमें आयरन डिफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, जिसकी वजह से वो लोग जो हैं अपने आप पनपेंगे। ठीक। ये लोहा जब तक कि वहाँ पे रहेगा, वहाँ तक जब भी ख़त्म हो जाएगा तो वो बातें फिर पैदा होंगी और फिर वो फैलेंगी। अच्छा, तो आपकी इस बात से तो ये बात सामने आई कि शायद कोई ऐसी बीमारी है जो आयरन की डिफिशिएंसी, यानी ये भी मुमकिन है। डॉक्टर साहब, सिंबॉलिज्म लगता है, क्या लगता है आपको अपनी रिसर्च में? आप तो खुद रिसर्चर हैं। जी जी जी, आपको क्या फील हुआ इसमें? मुझे तो ये सिंबॉलिक लगता है। अच्छा। क्योंकि अल्लाह ताला ने याजूज माजूज को बिल्कुल डिफाइन नहीं किया ये क्या चीज़ है। ठीक है। या। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता नाज़रीन, जो मैंने आपको डेटा दिया इस सेशन में शुरू में कि जिसमें हमने उनकी जिस्मानी साख्त का जिक्र किया, तो वो भी हो सकता है। और इसके साथ साथ क्योंकि कुरान पाक में सूरह कहफ में भी और सूरह अंबिया में भी सिर्फ जिक्र मौजूद है, डिटेल्स मौजूद नहीं है, तो वल्लाह आलम बिस्सवाब हम यही कह सकते हैं कि कुछ है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इशारा दे रहे हैं और कोशिश करते हैं इस इशारे को समझने की। अपने स्कॉलर्स से एक वक्फा हमें लेना है, हमारे साथ ही रहिए।
ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم قیامت کی نشانیوں کو ڈسکس کرتے ہوئے آج اپنے اس پروگرام میں اس سیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج کو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نکلنے سے کیا مراد سمجھ آتی ہے؟ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا سورہ انبیاء میں کہ قیامت کے قریب یہ نکل آئیں گے۔ نکلنے سے مراد یہ ہے جیسے کہ آپ سمجھیں کہ ایک دروازہ، ایک گھر میں کچھ لوگوں کو بند کر دیا آپ نے، ایک